Today's topic is self-stimulatory behavior in autism. So, first of all, actually, I will say it. I will just ask to you: is it good or not? Self-stimulatory behavior अच्छा होता है या खराब होता है? It's good or bad? I will say it's good, but some extent, कुछ extent तक ये ठीक होता है. Otherwise, it may be a problem. So first of all, I will define the self-stimulatory. Simply, it's a repetitive body movements or repetitive movements of objects is called self-stimulatory or stimming behavior. Okay. So I think almost everyone is having this type of behavior. You can say self-stimulatory behavior. क्योंकि आप daily living में भी when like you are in stress or you are in like when you are feeling bored, so you just biting your nails, you just twirling your hair, fingers in with hair, cracking knuckles, drumming fingers. So these type of behaviors, I think सब में होता है. Almost everyone show these behaviors, this self-destructive behavior. But हम लोग कभी इस पे ध्यान नहीं देते. हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते क्योंकि ये गुड क्यों होता है. ये मैं जैसे मैं बताया कि इट मे बी ए गुड, इट मे बी बैड, बट गुड फॉर सम एक्सटेंट. गुड इसलिए होता है कि इट रिलीव्स anxiety. It's like regulate our emotions. This self-stimulative behavior is regulate our emotions and relieve anxiety also. And the sense will feel good when like we are doing this type of self-stimulative behavior. So mostly this behavior occurs at the time of stress or when we are feeling bored or we are in angry. So in that type of situation, we are doing self-stimulatory behavior. But why we are like worries about the autism cases? Because if we are doing, अगर हम लोग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अगर हम लोग स्ट्रेस में या कुछ भी कर रहे हैं तो किसी को उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, हम लोग उसको बुरा नहीं मानते हैं कि चलो ठीक है वो टीथ ऐसे करता है या फिंगर हम लोग ऐसे करते हैं या टैपिंग करते हैं, तो ये कोई गलत चीज नहीं है. बिकॉज हम लोग अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीव करते हैं. बट इन केस ऑफ ऑटिज्म, in case of autism, why it is a problem? Because I request other people to be on mute. Yeah, please. प्रमोद जी, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही. ओके, आप एक बार म्यूट पे चले जाइए सब लोग. सर प्लीज गो अहेड सर. ओके, या यस. अब सेकंड स्लाइड पे आ जाएं प्रमोद जी. कैन यू कम ऑन सेकंड स्लाइड? या सो नाउ इन ऑटिज्म, सो जब जो मैं बताया कि व्हाट व्हाई प्रॉब्लम, लाइक व्हाई स्टिमिंग इज ए प्रॉब्लम इन ऑटिज्म. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब स्टिमिंग करते हैं तो हमारे ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल होता है. वी आर हैविंग सेल्फ कंट्रोल ऑन स्टिमिंग. बिकॉज जब भी हम चाहते हैं उस स्टिमिंग से रिलीव कर लेते हैं, वो अपने उससे जो है अपने आप को रोक लेते हैं. बट इन केस ऑफ ऑटिज्म वो नहीं रोक पाते. दूसरा बात की जो वी आर यूजिंग लाइक in case of autism, they are using whole body, or like they are using the way of taking stimulatory behavior is not good, not socially acceptable. Because like he is taking whole body or he is flapping his hands or like that, which is not socially acceptable. And another thing is his frequency is more than the others, because he's not having control, so his frequency is more than the others, and which can hinder the skills of that children or that people, autistic people, because it can hinder the socialization, it can hinder the academic achievements, it can hinder the other skills like motor skills or self-care skills. So it is a problem in autism, but some extent, because he or she is also taking like relief from like stress or relief from angerness. So I will suggest all of you, first you see, actually I have given some, sir आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रमोद जी. हाँ जी, वो किसी ने स्क्रीन शेयर किया था. नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? I don't think so. No. Oh my god. I request everyone not to share your screen, otherwise again we will face this issue. Can we share our screen? Like, Yeah, I'm sharing again. I'm sharing again. Okay. Yeah. Yeah, it's fine now. It's loading.
So I've just given the example of the self-stimulatory or stereotypical stimming in case of autism. You can see it like in visual, like visually he's using different senses to take self-stimulations. Like in visual, staring at lights or ceiling fans, repetitive blinking. You can see the example, moving fingers in front of the eyes, hand flapping, getting nothing in particular, tracking eyes, peering out of the corner of the eyes. These are the examples you can see, and you can compare with your child's also. And in case of auditory, is like form of humming, grunting, high-pitched shrieking, tapping ears or objects, covering or uncovering ears, fingers, making vocal sounds. So these are the auditory stimulations which they are taking through stimming. And in tactiles, like scratching or rubbing the skin with one's hands, and this type of mainly tactiles of tapping surface with fingers, in vestibular rocking front to back, rock side to side, spinning, jumping, in taste like placing body parts or objects in one's mouth, licking objects. I mean, these are the example which they are taking like different types of stimulation. The way of taking stimulation is different from others. So we are worried about that. What is this? This is not socially acceptable. This can hinder the other skills. So we are giving the attention on them. Like autistic, जो भी autism वाले बच्चे people होते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा attention इसलिए देते हैं कि ये हमको अच्छा नहीं लगता है. दूसरी बात कि ये skills में problem होती है, जो भी मैं आपको बताया कि ये सब में issues होती है, इसीलिए इसको intervene करने की जरूरत होती है. But I will say you कि अगर ये सब में issues नहीं हो रहे हैं और वो ये इस तरह का problem कर रहा है या इस तरह का behavior है उसमें, अगर stimming behavior है, just leave it, just let him to do, because उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को रिलीफ कर रहा है. अगर लीजर टाइम में अगर इस तरह का बिहेवियर वो डेवलप कर रहा है, अगर इस तरह का बिहेवियर है उसमें, तो उसको आपको उतना ज्यादा इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है. बट अगर वो बिहेवियर अगर प्रॉब्लम में बदल जाए, अगर वो बिहेवियर की वजह से कहीं पे इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर हम उस पर इंटरवेन करते हैं. और ये जो बिहेवियर, दिस आर द सिंपल बिहेवियर, आई रिटन दिस. एंड इससे भी जो अदर बिहेवियर है जो फिजिकली हार्म कर सकता है, उसको मैं अभी आपको प्रमोद जी स्लाइड चेंज करिए. Yeah, so these are the repetitive behavior which can cause physical harm. This is the behavior where we can intervene. So head banging, because वो head को बार-बार अगर banging करके उसका head को, सर को जो है फोड़ सकता है. Punching और biting, excessive rubbing or scratching at skin, picking at scrape or sores, swallowing dangerous items. Means these behaviors can do the physical harms to himself और others also. So यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेन करने का होता है. बट इसके पहले जो मैं आपको दिखाया, जो प्रीवियस स्लाइड में था, वहाँ पे भी इंटरवेन करने की जरूरत है. आई एम नॉट टेलिंग कि आपको इंटरवेन करना है, बट उसको एक प्रॉपर वे में इंटरवेन करना है. कैसे इंटरवेन करना है, हाउ टू, लाइक यू कैन नॉट, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड स्टॉप, how to decrease that type of that behaviors, and कैसे उसको मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज इन लाइक टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा. बट दीज आर द बिहेवियर विच ऑकर्ड इन लाइक इन द ऑटिस्टिक केसेस, ऑटिज्म पीपल और चाइल्ड्स. सो सर स्लाइड चेंज करिए, चेंज स्लाइड प्रमोद जी. Yeah, say so. As I already told you, why do people with autism stim? So actually, I want to say it. Why do people with autism stim? To stimulate the senses or decrease sensory overload. Already you know about the sensory issues जो आप लोग बोलते हैं, जनरल टर्म में आप sensory issues बोलते हैं उसको, कि कहीं ना कहीं वो sensory या तो overload होता है या sensory जो है उसका जो है hypo senses होते हैं. तो उस वजह से जो बच्चे हैं वो अपने आप को स्टीमिंग करता है, जहाँ पे उसको लगता है कि नहीं वो ज्यादा ओवरलोड हो रहा है या कम उसको हो रहा है, उसमें करता है. अदर काउजेज टू अडेप्ट टू एन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, जहाँ पे अगर, क्योंकि एडेप्टेशंस का एक बहुत बड़ा इश्यूज होता है जनरली इस तरह के बच्चे में, एडेप्टेशंस का इश्यूज होता है. जनरली फेमिलियर एनवायरनमेंट जहाँ पे होता है, देन एट दैट टाइम ही और शी विल फील रिलैक्स. बट जहाँ पे अगर न्यू जगह जाते हैं, अगर कोई नए न्यू प्लेसेस में जाते हैं, तो वहाँ पे उसको इश्यूज होते हैं उस जगह में. तो वो एडेप्टेशंस का इश्यूज होता है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस में आ जाता है. तो जब स्ट्रेस में आता है तो एट दैट टाइम लाइक ही इज यूजिंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स. एंड थर्ड इज रिड्यूस एंजाइटी एंड काम देमसेल्फ. सेम थिंग, एंजाइटी बिकॉज वो एडेप्टेशंस नहीं हो पाता, या किसी भी वजह से एंजाइटी हो रहा है, उसको कुछ करना नहीं है, आप कुछ कराना चाह रहे हो, या उसको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एट दैट टाइम लाइक ही जस्ट इंक्रीज दैट टाइप ऑफ बिहेवियर्स. And even calm themselves, also to calm themselves, it increase that behavior. Express frustration, especially if they have trouble communicating effectively. Yeah, this is also a
important term communications, because they are having poor communications. वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ठीक से, तो कहीं ना कहीं उसको एक फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन को ये करने के लिए वो अपने आप को स्टिमुलेट करता है या अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर डेवलप करता है। सर आपका स्क्रीन फिर चला गया, प्रमोद जी, कैन यू शेयर योर स्क्रीन अगेन? Yeah, actually I disconnected from my laptop, so just give me a moment. Today we are facing a number of issues. You share your screen, I can continue, like I can say, like जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं शेयर अभी उसको मैं जस्ट कंटिन्यू रखता हूँ। तो एज आई टोल्ड यू कि ये जितना भी ये काउज मतलब जो स्टिमिंग बिहेवियर होता है उसका कारण ये होता है, जो 4-5 आपको जो काउज दिख रहा है ऑटिज्म में, ये सारा 4-5 कारण होता है। एक तो वही सेंसरी ओवरलोड की वजह से होता है, एक होता है कि अपने आप को वो अडेप्ट नहीं कर पाता है बच्चा, वो न्यू इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाता है। तीसरा वही कम्युनिकेशंस का इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। चौथा है कि उसको मतलब वो जो एक्टिविटीज है उसको वो नहीं, जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो एट दैट टाइम लाइक वहाँ पे इस बिहेवियर जो है बढ़ जाता है। एंड लास्टली मे बिकम ए वे टू गेट अटेंशन, जो अटेंशन जो जहाँ पे उसको लगता है अटेंशन सीकिंग टाइप का, कि मैं अगर ऐसे करता हूँ तो हमारे पास जो भी मेरे जो पेरेंट्स आएंगे हमको बोलेंगे, तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर्स कैन आल्सो डेवलप थ्रू दिस थिंग्स, मतलब इस कारण से भी हो सकता है, मे बिकम ए वे to get attention. Okay, so and one activity is like avoid certain activities, as I already told you, avoid certain activities or expectations. So these are the things जिसकी वजह से ये स्टिमिंग जो है बढ़ जाता है, ये स्टिमिंग होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑटिज्म। प्रमोद जी चेंज द स्लाइड। प्रमोद जी, yeah, so what is the hypothesis, मतलब ये बिहेवियर बताया आपको 5 काउज बताया, these are the 5 काउजेस जिसकी वजह से बिहेवियर बढ़ता है। तो इसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, मतलब ये जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या है कि एक ओपिएट लाइक सब्सटेंस जो है ब्रेन से रिलीज होता है जब हम सेल्फ स्टिमुलेट अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं, वहां से एक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, वो जो ब्रेन से निकलता है, जिसकी वजह से हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट फील होता है। एंड दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि जो वो सेंस की जो बात है कि इंटरनल स्टिमुलेशन जो है, जो चिल्ड्रन विद एएसडी जो होता है उसमें या तो अंडर स्टिमुलेटेड होता है या ओवर स्टिमुलेटेड होता है। तो अंडर स्टिमुलेटेड को अपने आप को स्टिमुलेट करता है इसके थ्रू, और जो ओवर स्टिमुलेटेड होता है उसको एक रिलैक्स फील होता है, लाइक ट्रैंक्विलिटी इफेक्ट होता है, इसमें थोड़ा सा रिलीफ होता है। तो ये हाइपोथेसिस हमारा जिसके पीछे ये सारा जो बिहेवियर होता है वो होता है। सर स्लाइड चेंज प्रमोद जी। So when is the management needed? Because I already told you कि जितने भी वो जो issues हैं, जो मैं आपको जितना भी features बताया, तो वो सब features की वजह, जो जितने भी features हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसको stop करना है, वहाँ पे आपको manage करना है। बट मैनेज कहाँ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि मैनेज कहाँ करना है। When दिस काउज सोशल आइसोलेशन, अगर इस बिहेवियर की वजह से हमारा सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, इस बिहेवियर की वजह से हमारा सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, लाइक अगर बच्चे को फ्लैपिंग करना है या कुछ इस तरह का मूवमेंट करना है जहाँ उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इज लाइक ही इज डूइंग लाइक फ्लैपिंग और जंपिंग और एनीथिंग एल्स, तो उससे क्या होगा कि वो दूसरे से इंटरेक्ट करना नहीं चाहेगा। जहाँ पे जैसे पीयर ग्रुप में क्या होता है कि बच्चे खेल रहे हैं बट वो अपना स्टिमुलेशन लेने में है, तो वहाँ पे सोशल इंटरेक्ट हो सकता है, वहाँ पे सोशल आइसोलेशन का एक कारण हो सकता है। तो वहाँ एट दैट टाइम यू हैव टू लाइक डिक्रीज हिज बिहेवियर, और कैसे उसको अदर स्किल्स में डेवलप करके या जैसे प्ले स्किल्स में डेवलप करके उस सोशल आइसोलेशन को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट को मतलब ये मैनेजमेंट करना होगा जहाँ पे सोशल आइसोलेशन का इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड है स्टिमिंग और डिसरप्टिव एट स्कूल में, एज यू नो इट कि यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर वो क्लास में अपने आप को स्टिमिंग करने लगता है तो अदर चिल्ड्रंस को डिस्टर्ब हो सकता है, अदर चिल्ड्रन कैन like face a problem, so at that time this is also a problem, so you have to intervene it. And other thing is, does stimming cause problems for other family members, like अगर उसको मान ले कि हेड बैंगिंग का इश्यूज है या कुछ अदर इश्यूज हैं जिसके दूसरे फैमिली मेंबर्स को हार्म हो सकता है, तो at that time you have to intervene it. And other is stimming disruptive or dangerous? It like as already I have showed the
that example, 4-5 examples, head banging and this type of behavior. So it may be disruptive or dangerous. So at that time you have to manage it. And the last is stimming hampered other developments, as already told you. कि जो other development में अगर hampered होता है, like physical developments, like self care development, social development, academic, मतलब all other development में अगर hampered होता है, at that time you have to intervene. Okay, so slide change, Pramod ji. Slide change, Pramod ji. So because I'm an occupational therapist, definitely I will say about the occupational therapy management. So already you know about these terms: sensory integration therapy, motor development, peer development, social skill development, self-care training. I don't think I have to describe all these things, because when you will work on these skills, definitely that stimming behavior will go. But I am not telling you stop that type of behavior. I will give you some tips which you have to do, that tips that will help. And apart from this, so these 5 skills you have to develop through like occupational therapy, through occupational therapist. So Pramod ji, change kariye. So these are the tips. This is very important. You can just see it. These are the simple tips. I think most of you know about the tips, but just see it. Do what you can to eliminate or reduce the trigger, lower stress and provide a calming environment. मीन्स की जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे उसको स्ट्रेस हो रहा है, फर्स्ट यू हैव टू जज इट कि जो एबीसी होता है ना, जो मतलब आपको देखना है कि वो जो बिहेवियर है वो किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कहाँ पे उसको स्ट्रेस हो रहा है, किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है. तो आपको जो उस इन्वायरमेंट है उसको आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा, वो कामिंग डाउन इन्वायरमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो लो हो जाए. मेरा कहने का मतलब कि डू नॉट, प्लीज डोंट स्टॉप दैट बिहेवियर, बट जो बिहेवियर है वो जिस वजह से हो रहे हैं, जो काउज है, उस पे उसको आपको रोकना है, उसको स्टॉप करना है, उसको डिक्रीज करना है, उसको एक प्रॉपर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वायरमेंट, यू हैव टू सी द इन्वायरमेंट. की इन्वायरमेंट ऐसा नहीं हो जहाँ पे उसको ज्यादा इरिटेशन हो, ज्यादा मान लिया कि बच्चे को अगर लिटरली हाइपर सेंसिटिविटीज हैं और बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है चारों तरफ से कहीं पे, तो वहाँ पे उसका बिहेवियर स्टिमिंग बढ़ जाता है. तो इस तरह का इन्वायरमेंट से थोड़ा सा आप अलग रखने की कोशिश करें. डेफिनेटली यू गिव दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आल्सो, बट यू हैव टू लाइक धीरे धीरे, स्लोली यू हैव टू गिव. तो सडनली आपको इस तरह का इन्वायरमेंट या जहाँ पे उसको ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एट दैट टाइप इन्वायरमेंट को अवॉइड करना है आपको. सो दीज आर द टिप्स. एंड सेकंड इज ट्राई टू स्टिक टू ए रूटीन फॉर डेली टास्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, बिकॉज क्या हुआ कि अगर रूटीन में आप नहीं रखते हैं, इफ चाइल्ड इज नॉट इन रूटीन, लाइक उसको आप अपना काम कर रहे हैं तो वो अपना स्टिमुलेशन ले रहा है, बिकॉज उसको कुछ काम नहीं है, बिकॉज ही और सी डजंट नो हाउ व्हाट टू डू. जनरली क्या होता है, चिल्ड्रन इज लाइक प्लेइंग विथ टॉयज और इस तरह के अपने से वो कुछ इस तरह खेलता है. बट इन दिस केसेस यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक रूटीन डेवलप करना पड़ेगा कि एक मॉर्निंग से इवनिंग तक का क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे हम उसको एंगेज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज में. बट आई एम नॉट टेलिंग कि उसको आप फ्री छोड़ो, मतलब उसको फ्री नहीं छोड़ो. फ्री तो आपको छोड़ना है, कहीं ना कहीं लीजर टाइम उसको भी देना है. इवन अगर वो सेल्फ स्टीमिंग उस लीजर टाइम में कर रहा है तो उसको करने दो आप, बट ट्राई टू स्टिक इन ए रूटीन. एक रूटीन आप बनाओ, डेली टास्क में एक रूटीन बनाए और उस पर आप काम करें. इंकरेज एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड सेल्फ कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल का यहाँ बहुत बड़ा इश्यूज होता है. जैसे मैं कंपेयर कर रहा था, आई टोल्ड यू कि हम लोग जब करते हैं, हम लोग जब ये बिहेवियर शो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज एज फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि मैं अगर मीटिंग में कहीं पे बैठा हूँ और मीटिंग हो रहा है और मान लिया सडनली सब साइलेंट है और मैं आई एम टैपिंग द टेबल और मुझे ध्यान में आ रहा है कि अरे मैं टेबल टैप कर रहा हूँ, तो सडन से हमको लगा कि सब मुझे मेरी तरफ देख रहा है तो मैं हाथ हटा लूँ. तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ कंट्रोल होता है, वहाँ पे हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं. तो वो चीज़ बच्चे को सिखाना है, सेल्फ कंट्रोल. उसके लिए और भी मेथड्स होते हैं, बट यू हैव टू गो इन डिटेल्स अबाउट दैट. सो इसमें आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाना है, आपको जो बिहेवियर, जो गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर क्या है, उसको आपको सिखाना है. अवॉइड पनिशिंग द बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. पनिश नहीं करना है बिल्कुल. अगर ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो पनिशमेंट नहीं करना, आपको पनिश नहीं करना है, उसको मारना नहीं है, उसको बहुत जोर से डांटना भी नहीं है. आपको पनिशिंग से बचना है. मैंने पनिश करेंगे तो अदर बिहेवियर डेवलप हो सकता है. ठीक है, आप पनिश कर दिए, वहाँ पे वो छोड़ दिया, बट यू नो इट कि उसको बहुत ज्यादा देर तक वो मेमोरी नहीं रहेगा कि आप उसने उसको पनिश किए. कुछ देर के बाद फिर से वो करना शुरू कर देगा. तो अवॉइड पनिशिंग दैट बिहेवियर. टीच एन अल्टरनेट बिहेवियर्स. सो अगर कोई बिहेवियर दिखा रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल इफ चाइल्ड इज लाइक डूइंग हैंड फ्लैपिंग,
तो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वहां से स्टिमुलेशन ले रहा है। इफ यू लाइक उसको कुछ अगर फाइन मोटर या कुछ इस तरह का ग्रॉस मोटर में जैसे बॉल कैच थ्रो या कुछ इस तरह के एक्टिविटीज अगर आप कराते हैं, एनिमल वॉक दैट टाइप ऑफ थिंग्स, तो वहां पे उसका जो हैंड फ्लैपिंग या जो अदर बिहेवियर्स है वो कम हो जाए, क्योंकि वो हाथ को प्रॉपर यूज कर रहा है, वहां पे फाइन मोटर स्किल्स में उसका यूज हो रहा है। तो टीच एन अल्टरनेट बिहेवियर, जो उस तरह का बिहेवियर, मान लिया कि एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे विजुअली विजुअल वो फैन देखता है या इस तरह करता है, विजुअली उस चीज को करता है, तो एट दैट टाइम आप कुछ और अदर विजुअल चीज आप उसको दिखा सकते हो जहां से उसको कुछ नॉलेज हो जाए। मान लीजिए लैपटॉप आप कुछ देर तक आप दिखा दो, कुछ उसको वहां पे जो एजुकेशनल जो चीज होता है वहां पे आप दिखा सकते हैं। तो just alternate that behavior, that type of behavior you can give the alternative like options to the child, and intervening during unsafe behavior, जहाँ पे उसका जहाँ लगता है कि नहीं ये सेफ नहीं है, मान लिया चाइल्ड बहुत हाइट में चढ़ गया, वहां से गिर सकता है, बार बार ऊपर चढ़ रहा है, तो वहां पे आपको इंटरवेन करना है, वहां पे कैसे रोकना है आपको, वही अल्टरनेट बिहेवियर देके या काउंसलिंग करके जैसे भी हो, बट यू हैव टू स्टॉप दैट बिहेवियर लाइक इफ दिस इज अनसेफ बिहेवियर, एंड रीइंफोर्सिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर वो अच्छा बिहेव करता है, लाइक स्टिमिंग कर रहा है, दिस इज नॉट गुड, वी ऑल नो कि नहीं हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट जहाँ पे वो अच्छा कर रहा है, मान लिया कि आप स्किल डेवलप करा रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि फाइन मोटर कुछ कराओ, मान लिया फाइन मोटर में ही वो कुछ कर लिया या कुछ करता है, तो जस्ट इनकरेज देम, उससे क्या होता है, इनकरेज करने से क्या होता है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको इनकरेज करना है। तो मुझे आपका स्लाइड नहीं दिख रहा है, कैन यू शेयर अगेन प्रमोद जी, कैन यू शेयर अगेन प्रमोद जी? 1 second, sir. हाँ। 1 second, sir. Vashuki Devi, I think she is sharing her screen. Yeah, it's okay. Okay, so reinforcing acceptable behavior, जहाँ पे अगर अच्छा कर रहा है तो उसको reinforce करिए, पॉजिटिव reinforcement दीजिए, उसको आप जो है रिवॉर्ड दीजिए, उसको हक करिए, कुछ इस तरह करें, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव reinforcement देना है जो acceptable behavior होगा। Second, other things is creating a safe environment, as I already told you, जो environment हो वो safe हो, अगर वो स्टीमिंग ले भी रहा है तो वहाँ पे कुछ अनसेफ वाला चीज कुछ नहीं होना चाहिए। Suggesting alternate activities that provide the desired effect, already told you. Teaching self management tools, वो भी आपको ये थोड़ा सा broad ये जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म नहीं है। Working with which is very important, working with occupational therapist, educator and the educational system, because they will assess your child कि क्यों कर रहा है, ये क्या किस कारण से कर रहा है, either is having sensory issues और कुछ behavior हैं या कुछ और issues हैं, ये स्किल में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक यू हैव टू लाइक उनके साथ आप काम करो, उनसे आप सीखो और उसके साथ काम करो। एंड सीकिंग मेडिकल हेल्प, जहाँ पे जैसे हेड बैंगिंग है, कुछ इस तरह का इंजोर्ड हो तो वहाँ पे तो मेडिकल हेल्प का रिक्वायरमेंट होगा ही। तो these are the overall about the self-stimulatory behavior in children, okay, in autism. So Pramod ji, now the time of question and answers. If Pramod ji, हेलो, हाँ बताइए। सर एक Yeah, I request everyone. One second. I request everyone. If you have any question, you can put in chat box. So we will go through it one by one. Okay. So we will take all questions from the chat box. Okay. Okay. So at the time of registration, few parents have shared their questions. So first we will go through those questions, and then we will pick those questions which are in the chat box. Okay. Okay. All right, sir. There is a question right now I'm seeing here in a chat box from Navmita Bhuya. Yeah. Right. So she's asking like, her son is doing paper tearing and juggle with that paper. How can I control?
how can I teach self-management skills? Yes, I think paper tearing. Yeah, most of the kids having this habit, like they tear papers. घर में कोई भी होता है Yes, you can. न्यूज़पेपर या important paper, they tear it. I understand. I understand. You can convert it in functional. If he or she is tearing paper and habit of tearing paper, so you just give to tear the paper and like उसको पेस्ट भी आप कराएं. जैसे आप टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक एक्टिविटीज होता है, उसको उस एक्टिविटीज में आप कन्वर्ट कर दें, उसको एक लिमिट में आप दें. जो पेपर वो टीयरिंग कर रहा है, इफ दे आर डूइंग लाइक उसको पेपर टीयरिंग में अच्छा लग रहा है, तो उसको एक एक्टिविटीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे एक तो आप रोज आप उस एक्टिविटीज को कराएं, उसके साथ आप बैठें. जस्ट वो अगर पेपर टीयरिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसको पेपर टीयरिंग करने दीजिए. और टीयरिंग के बाद यू हैव टू पेस्ट दैट टीयरिंग पेपर. जो पेपर वो टीयर कर रहा है, एक तो उसको पेस्ट करना है. जैसे आप फेविकॉल आपने लगा दिया पेपर में, उसके ऊपर छोटा छोटा जितना भी वो टुकड़ा किया उसको पेस्ट कर रहा है. एक तो ये हो गया टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. अदर थिंग्स की टीयरिंग करने के पीछे रीजन ये भी होता है कि वो इनपुट लेता है. जैसे इफ ही इज टेकिंग लाइक साउंड आता है वहां से, आइदर ही इज टेकिंग साउंड और लाइक उसको इनपुट जो स्मॉल जॉइंट्स होता है उससे इनपुट ले रहा है. तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि लाइक पेपर टीयरिंग कर रहा है, अगर वो जॉइंट इनपुट ले रहा है, यू कैन लाइक कन्वर्ट लाइक जो थिक पेपर होता है, थिक पेपर को भी आप टीयर करने दें या अदर फाइन मोटर एक्टिविटीज को आप उसमें ये कर लें. लाइक इफ इज हैविंग स्किल्स ऑफ लाइक सीजर कटिंग का जो स्किल्स होता है कि अगर सीजर कटिंग कर पाए तो उस टाइप का कटिंग का आप जो भी है एक्सपोजर दें. कहने का मतलब कि आप उसको एक फाइन मोटर का एक प्रॉपर प्लान कर लें. आई डोंट नो कि आपके बच्चे में कितना स्किल्स क्या है, बट एक फाइन मोटर का प्रॉपर प्लान करके एंड आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए. पेपर टेयरिंग कर रहा है तो उसको डिस्करेज नहीं करना है कि पेपर टेयरिंग मत करो. कोशिश करिए कि पेपर को आप कहीं पे ऐसा जगह रखें कि वो बार बार ला के उस चीज को टीयर नहीं कर पाए. ये आप पहला कोशिश करना है. दूसरा, उसके साथ बैठ के आपको रोज टीयर करवाना है. आप ये मत सोचो कि इसमें और भी चीज होता है, बहुत सारा चीज है. जैसे पेपर टीयरिंग कर रहा है, आप जोर से आए, आप चिल्लाए कि आप क्यों पेपर टीयर कर रहे हो, तो भी एक बिहेवियर आ जाता है कि नहीं मैं जब पेपर टीयर कर रहा हूँ एट दैट टाइम पेरेंट्स आर कमिंग एंड लाइक टेलिंग कि पेपर टीयर कर रहे हो, तो भी एक बिहेवियर. तो करने का मतलब अगर वो पेपर टीयरिंग कर रहा है तो उसको स्टॉप नहीं करना है, आप उसको फंक्शनल में कन्वर्ट कर दो. आप उसको अगर पेपर टीयर कर रहा है तो उसको टीयर करने दीजिए, उसको पेस्टिंग कराइए, अदर फाइन मोटर एक्टिविटीज को इंक्लूड करिए जहाँ पे पेपर रिक्वायरमेंट होता है, तो उससे मेरे ख्याल से वो कम हो जाएगा. ठीक है प्रमोद जी? Yeah. So next is questions from Swati Srivastav. She's saying, my son used to smell mine and his brother hair. What to do for this? Please suggest. Where it is? Actually, I cannot see it. एक minute. Yeah, I mean, hair. yeah, hair. Okay. So I think this is a type of communication, you can say. It's not smelling like this is not a smelling habit, I will say, because ये इसमें क्या होता है कि एक तरह से कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है ना कि उसके साथ कैसे हमको कम्युनिकेट करना है, तो वो एक सेंस को डेवलप कर लेता है कि हमको उसके थ्रू उस चीज को कम्युनिकेट करना है. तो बेटर है कि जिसका वो जो स्मेल कर रहा है, जैसे ब्रदर और सिस्टर जिसका भी वो स्मेल कर रहा है, तो उसके साथ वो ज्यादा इंटरेक्ट करे. आई थिंक अगर उसके साथ थोड़ा सा प्रॉपर वे में कुछ प्ले करे, कुछ गेम खेले, कुछ सोशल प्ले या सोशल जो भी आप साथ में मिलकर अगर करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी इफेक्टिव. अदरवाइज डोंट स्टॉप इट. अगर वो स्मेल कर रहा है, दिस इज लाइक जैसे हम लोग एक क्या कर सकते हैं, अपना इमोशंस फील करते हैं ना, एक इमोशन होता है कि जैसे बहुत अच्छा लगता है तो वो जाके उसको स्मेल कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ दिस इज द इमोशन. डोंट लाइक स्टॉप इट, बस उसको उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करें उसके साथ, क्योंकि इसमें हार्म कुछ नहीं है. यू कैन सी अगर आप सोचते हो, यू थिंक इट कि अगर वो जाके और हेयर को स्मेल करना, ठीक है, इट्स लुकिंग बैड, आई नो इट कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो जाके स्मेल कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये एक तरह का कम्युनिकेशन है. वो अपने आप को कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है, अपने जो पीयर ग्रुप है या जो अपने ब्रदर सिस्टर है, तो उसको इस तरह करके आप कम कर सकते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट करें. अगर वो आपके पास आता है, अगर वो हेयर स्मेल कर रहा है, तो उसको आप हक कर लें, उसके साथ बैठें, उसको प्यार करें, उसके साथ बात करें, डेफिनेटली वो कम हो जाए. All right, sir. Next question is from Rohitesh Sharma. Okay. He's saying his son is he's 15-year-old. ESD taps on his pencil all the time. Like, okay, one hand is busy in it, always, even while studying, another always. Okay, so pencil tap करने की. I request Swastik. Okay. Can you stop sharing your screen? So अच्छा, वो पेंसिल टैप करने, वैसे Right. टैपिंग ना.
ओके, ठीक है। आई थिंक लाइक इसमें भी वही चीज है, इसमें वही है, साउंड ही इज टेकिंग साउंड थ्रू टैपिंग द पेंसिल। तो यू कैन लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ इस No, तरह sir, का he's हम not taking sound on the pencil. He's tapping in his hand itself within fingers. There's no sound. या There is no sound. He's tapping pencil within his fingers. oh within his fingers, okay, that means he is taking like stimulation in his small joints, I think so. So I will say you, I will suggest you, you give maximum fine motor skills or gross motor skills पे आप काम करो, definitely it will improve, definitely it will like it will go, because if he is taking like if he is like twirling like आप बता रहे हो पेंसिल में वो टैप करता है, फिंगर टैपिंग, Exactly. हाँ डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। फाइन मोटर आप कराओ जिसमें आपको जो स्मॉल जॉइंट्स होता है ना उसमें थोड़ा सा इनपुट चाहिए, मतलब लाइक जैसे यू कैन से क्लोथ पिन एक्टिविटीज और लाइक द एक्टिविटीज दैट require that force like fixing puzzle or that type of activities you can do it, so उससे आपका कम हो जाएगा, definitely it will decrease. Okay. Thank you, sir. All right, sir. Next is from Ritu Sharma. She is saying, how can we stop self-talking or repeating same sounds or words? तो बहुत से बच्चों में सर ये होता है कि एक ही चीज को बार बार दिन भर बोलते रहते हैं, ठीक है, एंड सेल्फ टॉक तो ऑब्वियसली है ही बहुत से बच्चों में, तो इज इट उसमें हाँ नहीं, आई नो इट एक्चुअली। उसमें क्या होता है, उसमें दो चीज होता है, इफ यू कैन लाइक थिंक अबाउट दिस। इसमें क्या होता है कि सेल्फ टॉकिंग का दो रीजन हो सकता है। इट मे बी लाइक सेल्फ टॉकिंग होता है कभी कभी उसको जब वो अपने आप में बोलता है तो उसको साउंड जब जाता है तो वो अच्छा लगता है उसको, मीन्स ऑडिटरी स्टिमुलेशन, जो वो स्टिमुलेट कर रहा है अपने आप को बोल के वो स्टिमुलेट कर रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो स्पीच का जो इनिशिएशन स्टेज होता है, जैसे जहाँ पे कन्वर्सेशन हमारा लिमिट है, हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, हम सेंटेंस बोल नहीं सकते हैं प्रॉपर वे, हम प्रॉपर वे में किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं थ्रू टॉक, तो वहां पे सेल्फ टॉकिंग बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसको कम्युनिकेट करना है, ज्यादा से ज्यादा उसका लैंग्वेज पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बात करना है, इंस्ट्रक्शन पे काम करना है, उसका रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम करना है। जो पिक्चर वगैरह जो होता है, जो आप फ्लैश कार्ड और ये सब पिक्चर दिखाते हैं उसके बारे में बात करना है, किसी चीज के बारे में बात करना है। तो जितना आप उसके साथ बात करेंगे, जितना उसको इनपुट देंगे इस तरह का चीज, तो डेफिनेटली उसका सेल्फ टॉकिंग भी चला जाएगा और जो इस तरह का जो हैबिट है वो कम हो जाएगा। आई थिंक सो, बिकॉज अगर ये हैबिट है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन ज्यादा लेता है तो आप कुछ रिदमिक सॉन्ग सुना सकते हैं उसको, लाइक स्लो सॉन्ग, या जहाँ पे साउंड वाला जो थोड़ा स्लो साउंड टाइप का जो सॉन्ग आता है, म्यूजिक आता है, सो दैट टाइप ऑफ एक्सपोजर यू कैन गिव, उससे डेफिनेटली कम हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्रॉम नीतू तिवारी. शी इज सेइंग कि माय सन फिक्स यूटेंसिल्स एंड मेक साउंड. नॉर्मली कुछ बच्चे होते हैं और भी बहुत से बच्चों का है ऐसे कंप्लेंट कि बर्तन मिल जाते हैं वो आपस में उसको टकराते रहेंगे या गिराते रहेंगे, तो उसकी आवाज में बहुत होती है या क्या है वो? वही सेम चीज होता है प्रमोद। उसमें क्या होता है, वही साउंड ले रहे हैं वो, कहीं ना कहीं उस चीज को वो इनपुट ले रहे हैं साउंड का, वो अच्छा लग रहा है उसको, साउंड का इनपुट लेने में उसको अच्छा लग रहा है, तो कोई नहीं। आप देखो, वही मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ, मैं पहले भी यही बताया कि जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है अपने आप को अच्छा लगने के लिए होता है, वो उसको उसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट वो अगर हिंडर कर रहा है, अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आप कुछ एक्टिविटीज करा रहे हो, कुछ गेम करा रहे हो या कुछ ऐसा करा रहे हो जहाँ पे वो बार बार उसका ध्यान वही यूटेंसिल टच करने और आवाज करने में लग रहा है, तो वहां पे हम इंटरवेन करेंगे। अदरवाइज उसको कोशिश ये करेंगे कि अगर वो अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट कर रहा है थ्रू उसके थ्रू, तो उसको करने दो, एक टाइम लिमिट तक उसको आप करने दीजिए। बट इसके अलावा जो वो कर रहा है, इसमें आप दूसरा ऑप्शन आप दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि जैसे आप कोई भी साउंड वाला चीज आप दे सकते हैं, लाइक जैसे छोटे बच्चों का ड्रम आता है या कुछ इस तरह का चीज जिससे साउंड आता है, तो उस तरह का एक्सपोजर, पियानो वगैरह होता है, तो एट दैट टाइप एक्सपोजर यू कैन गिव, जहां से उसको वो साउंड मिले। करने का मतलब वो मोटर इनपुट के थ्रू वो साउंड ले रहा है, तो जब मोटर इनपुट के थ्रू तो इस तरह का चीज का एक्सपोजर आप देंगे तो डेफिनेटली आपको उससे कम हो जाएगा मेरे ख्याल से। और बाकी वो सॉफ्ट म्यूजिक और ये सब तो आपको देना है ऑडिटरी स्टिमुलेशन में, सो उससे कम हो जाएगा मेरे ख्याल से। और इससे टेंशन लेने की बात नहीं, अगर ये यूटेंसिल से अगर कर रहा है, देखिए अगर सोशली एक्सेप्टेबल है, घर में अगर कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत करने दो, आप कोई नहीं, वो उससे उसका रिलीफ हो रहा है। अगर आप कुछ एक्टिविटीज करा रहे हैं उसको, अगर वो भी कर रहा है और अगर वो वाला हैबिट है, तो अपने आप वो हैबिट चला जाएगा। अगर फाइन मोटर या कुछ इस तरह का एक्टिविटीज जहाँ पे वो हाथ का ज्यादा यूज करने लगा या कुछ इस तरह का करने लगा, तो वो इनपुट अपने आप लेना कम हो जाएगा। तो डोंट स्टॉप इट, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना, थोड़ा स्किल डेवलप करा के वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, या कुछ इस तरह का ऑप्शन दे दें जहाँ पे वो अदर वे में उस चीज को ले। अदरवाइज इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग। ओके Okay, sir. Next is
one parent has mentioned हीर मधु, उनकी बेटी जो है वो दिन में कई बार उसको नहाने का होता है कि नहाना है इसको। बहुत से बच्चों में होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं अपने हाथ गीले करने के लिए बाथरूम में, पैर गीले करने के लिए। तो उनका ये है कि उनकी बेटी जो है वो दिन में कई बार जाती है नहाने के लिए। तो इज इट अ सेल्फ स्टिमुलेशन? हाँ, नहीं ये होता है, ये वाला चीज है, वही चीज है कि कहीं ना कहीं उसको सेम चीज है, वो एक तरह से अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है, वो पानी उसको अच्छा लग रहा है, वहां से जा रही है, वाटर प्ले कर रही है, तो फिर वो आ रही है आपके पास, फिर वो जा रही है। तो ये वाला चीज है, उसमें आपको वही चीज है, स्टॉप नहीं करना है उसको, धीरे धीरे उसको फ्रीक्वेंसी कम करेंगे। फ्रीक्वेंसी तभी कम करेंगे उसको हम, वही मैं बताया कि अल्टरनेट कुछ आप सोचें। जैसे अगर पानी से वो नहा रही है या पानी से खेलना चाह रही है, तो आप अल्टरनेट सोचो कि इस तरह का चीज अरेंज करो आप जिसमें वो पानी से वो खेले। कहने का मतलब कि आप, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी बर्तन है उसमें आप पानी रख दिया, पानी रख के और अब फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म में पानी डुबा के उसको कटोरा में रखो, उसको डुबा के बलून रख दिए, पानी के अंदर बलून रख दिए, बलून को सेपरेट करो, उसके निकालो। कहने का मतलब कि आप उसको कुछ अल्टरनेटिव आप सोचो, उसको स्टॉप मत करो। अगर वो नहाने जा रही है, कुछ इस तरह जा रही है, वो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो नहा रही है तो उसको वो चीज अच्छा लग रहा है, बट मेनली उसका वाटर से उसका ज्यादा मेरे ख्याल से इंटरेक्शन है। तो बेटर यू गिव द सम अल्टरनेटिव थिंग्स कि वहां पे करें। इसके अलावा अब जो सेंसेस, जो इंटीग्रल सेंसेस है, मैं बार बार फिर उसी चीज पे आऊंगा कि कहीं ना कहीं वो टेक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर जो आपका थेरेपिस्ट ऑलरेडी बोल रहे होंगे, इस तरह का इनपुट देने की कोशिश करेंगे, उससे डेफिनेटली उससे भी कम होगा। बट यहाँ पे आप अल्टरनेट कर सकते हैं कि लाइक वो बार बार जा रहा है, पानी में जाके खेल रही है, तो बेटर है कि आप उसको पानी का कुछ इस तरह का एक्सपोजर दें, कुछ गेम दें, कुछ वाटर प्ले करवाएं, जिससे उसका वो जाना कम हो जाएगा। जैसे वाटर बबल आता है, फूटते हुए जो वाटर वो गिरता है, उसके थ्रू कुछ खेले, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन गिव, उससे कम हो जाएगा। Okay. Okay. Next is one parent, Rashmi Jain, has mentioned his son is 3.3 years and non-verbal, and he do streaming sometimes, like sounds or characters की he do streaming. So question है कि उनको stop करना चाहिए इस चीज को, या ये ठीक है for learning the sounds and all? कुछ बच्चे होते हैं ना साउंड निकालते हैं, babblings या So he's just like Okay, listen? Rashmi, yes, oh very cute child. Thank you, sir. तो इस तरीके से ये बोलता रहता है। जब सोकर उठता है तब भी उसको जब तक हम खुद उठाकर नहीं ले जाएंगे तो वो बिस्तर में आधा घंटे 1 घंटे तक ऐसे ही बोलता हुआ लेटा रहता है। उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, चुपचाप अपना बोलता रहेगा, अपने आपस में बात करता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, आई थिंक ये अभी ग्रोइंग चाइल्ड है, मुझे लग रहा है कि अभी वो बहुत छोटा है और अभी ये कम्युनिकेशन सीख रहा है, अभी बोलना, क्योंकि इसका इनिशियल स्टेज है। मैं आपको बोला ना कि कभी कभी क्या होता है कि जब इनिशियल स्टेज होता है तो सेल्फ टॉकिंग का हैबिट होता है या सेल्फ साउंड, कुछ इस तरह का साउंड निकालता है, क्योंकि उसका लिमिट है, अभी वर्ड्स नहीं है, उसका अभी पूरा सेंटेंस है, वो अभी उतना नहीं डेवलप किया होगा। आई डोंट नो, वो सेंटेंस बोल लेता है अभी, क्या कन्वर्सेशन क्या है अभी तो कोई वर्ड्स भी ऐसे विशेष कोई वर्ड्स भी नहीं बोलता, बस ऐसे ही बोलता है, कुछ कुछ मम्मा माँ ऐसे बोलता है बस। तो ये अभी इनिशियल स्टेज है, आप उस पे, उसके साथ आप काम करें, उसके कम्युनिकेशन पे काम करें, उसका जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है उस पे आप काम करें, तो हमको लगता है कि ये साउंड चला जाएगा। और मतलब अगर अभी वो इसको जैसे ये सर जैसे ये बोलता है तो उसको हमें इंटरप्ट करना है या बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना है, अगर वो जहाँ पे बोल रहा है इंटरप्ट नहीं करना, लेकिन आपको अगर कुछ काम है, ऐसा नहीं है कि अगर वो बोल रहा है तो चलो छोड़ दो, कुछ काम है उसको ले जाना है तो बोल रहा है, ऐसे नहीं करना है। अगर वो अपने आप में खेल रहा है, बोलते हुए खेल रहा है, तो जस्ट कोशिश ये करिए कि कुछ इस तरह का कुछ रिलेवेंट चीज भी के साथ खेले या कुछ आपके साथ कुछ बात करे, तो आप धीरे धीरे करके उसको, मतलब कहने का मतलब कि उसको कोशिश करिए इंटरेक्ट, उसके साथ इंटरेक्ट करने का। मैक्सिमम इंटरेक्शन जो है वो सेल्फ टॉकिंग को कम कर देता है। उसके साथ करेंगे। सर एक चीज और, सर इससे अगर जैसे ये बोल रहा है पर जैसे ही हम इससे बात करने के लिए बोलना चालू करेंगे तो ये बोलना बंद कर देता है, फिर कुछ नहीं बोलता है, वो सुनता रहता है हमें। क्योंकि पता नहीं है ना, एक्चुअली वो बोल रहा है अपने मन से बोल रहा है, उसको कन्वर्सेशन पता नहीं आपके साथ क्या बोलना है, तो आपको सिखाना पड़ेगा, एक एक वर्ड करके आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक सिखाना पड़ेगा, प्रॉपर वे में काम करना, एक्चुअली असेसमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और एक एक करके आपको थ्रू लाइक उसको प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, है ना। तो अभी कम्युनिकेशन पे काम करिए ज्यादा, उसके बाद फिर उस पे होगा, स्पीच पे काम होगा, है ना। तो सर इसके लिए मुझे स्पीच थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी कि अभी ओटी पे ही काम करें? इसको हम लोग सेपरेटली
You need that. So there are so many questions, so we need to go through. Yes, please. Okay. So now there is the Ratnam Chandra. She is saying कि उनका 7 साल का बेटा है और वो कुछ भी खाने से पहले स्मेल करता है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? स्मेल करते करने दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। ओके। गुस्सा आ रहा है मेरी बात पे, बट आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ा इश्यूज है। अगर वो स्मेल कर रहा है तो क्या दिक्कत है? एक्चुअली हम लोग छोटा छोटा चीज को इतना ज्यादा बड़ा ले लेते हैं ना, तो हम लोग को लगता नहीं ये भी इश्यूज है, ये भी इश्यूज है, ये भी इश्यूज है। प्लीज अगर थोड़ा बहुत अगर ये चीज है तो ठीक है, अपने आप चला जाएगा, उसको स्मेल करने दीजिए ना, क्या इश्यूज है? कोई हानिकारक नहीं होना चाहिए, कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए, करने दीजिए स्मेल, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। Okay. No, I'm saying there is a parent PR Gupta who mentioned again कि उनका बच्चा भी है न्यूज़पेपर वगैरह मिलता है उसको फाड़ देता है। हाँ, और ऑलरेडी आई हैव गिवन योर आंसर। आई थिंक वही चीज आपको करना है, उसको कन्वर्ट करिए, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज में कन्वर्ट करिए, डेफिनेटली इट विल गो। नो सर, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट एक्चुअली। वो क्या है, लोगोस का फैसिनेशन है। कैन यू से लॉर्डली? सर मैं कह रहा हूँ कि उसे कुछ लोगोस का फैसिनेशन है। लोगोस का, ओके ओके। वगैरह लोगो है तो टीवी हर वक्त वही देखेगा, नहीं तो रोने लगेगा। हर जगह दीवारों पर, फर्श पर, नोटबुक पर, न्यूज़पेपर पर, हाथ पर वही बनाता रहता है, हर जगह उसमें लॉस्ट रहता है और लोगो बोलता रहेगा 980 है वो ऑप्शन ऑलवेज। ठीक है, उसको वही चीज है। देखिए, चीज को आप समझने की कोशिश करिए। अगर लोगों से फैसिनेशन है, हर लोगों को देख के उसको अच्छा लग रहा है, तो उसको यहाँ पे ले, कितना एज कितना है बच्चे का? जस्ट आई वांट टू एज 9 इयर्स है ना? तो ठीक है, लोगों से फैसिनेशन है तो आप उसको थ्रू लाइक अगर उसको आप उसके साथ फंक्शनल में कन्वर्ट कर दो। आप डिफरेंट लोगोस आप दिखाओ, उसको बोलो लोगोस को पॉइंट करो, लोगोस का वो ड्रॉ करेगा, वो डिफरेंट कॉपी में, पेपर में ड्रॉ करेगा, तो उसको उस तरह से उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अदर स्किल्स पे आप काम करो तो अपने आप फैसिनेशन चला जाता है। आप उसको, होता क्या है ना कि अगर वो जिद करता है, अब रोने लगता है या कुछ इस तरह करता है, तो आप छोड़ देते हो, चलो करते जाओ। कहने को वही मैं बताया कि रूटीन डेवलप करना जरूरी है, आपको एक प्रॉपर टारगेट रखना जरूरी है, स्किल्स कैसे हम डेवलप करें वो जरूरी है। अगर उस पर आप काम करेंगे तो फैसिनेशन चला जाता है। ये बहुत लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, एक टाइम के बाद चला जाता है। जैसे स्किल डेवलप होता है, जैसे कम्युनिकेशन डेवलप होगा तो वो चला जाएगा। उसके लिए अलग से आपको लोगोस के लिए अलग कुछ नहीं करना है, जैसे उसको फंक्शनल में कन्वर्ट कर दीजिए। आप समझ गए ना? आप समझना है चीज को, क्या ये कर रहा है, उसको हम एक प्रॉपर वे में कैसे करा सकते हैं, बस ये चीज है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। All right. Next is Preet Sidhu, and he is saying, my son keeps on watching fan and on and off. अच्छा, मतलब फैन जैसे है उसको ऑन ऑफ करता रहना और बार बार उसी को देखते रहना। And sometime revolve round and round. What should I do? अच्छा, गोल घूमते रहना। I think it is sensory issues. This is I think vestibular. He needs this vestibular input. Okay, so it's not related to stimming, right? Yeah, it is. Okay, fine. So next question is sometime actually most of the parents has asked questions when related to other issues like sensory. Yeah. It's not related to this. Sometimes it's okay. People asking like how to reduce screen time, so we cannot right now address those questions. Yeah, right. No, you just engage in other activities ना, physical activities आप ज्यादा दो। आप उसको क्यों, आप उसको इस तरह करके कुछ अदर ऑप्शन सब देने की कोशिश करें जो उसका इंटरेस्ट का चीज है। यू सर्च इज इंटरेस्ट, क्या उसका इंटरेस्ट है, आप उसको सोचो जो फिजिकल एक्टिविटीज में क्या इंटरेस्ट है, उस तरह का ऑप्शन देके उसको कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टॉप कुछ नहीं कर सकते बच्चों के साथ। आजकल बच्चे आप ऐसे सडनली आप नहीं बोल सकते, उसको मोबाइल आप छीन नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना? दूसरा बिहेवियर डेवलप हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लाइक स्टॉप नहीं करो उसको, कोई किसी चीज में उसको एक अल्टरनेटिव अप्रोच दो, है ना? Yeah, so there is a question from one parent who said like my 3-year-old son with autism spectrum is when he's unhappy then he bang his head. Mada Bhushi Aravind is a parent who asked this question. बच्चा जब उनका मतलब खुश नहीं होता then he bang his head on the floor. Sorry, to either a door or a person in front. And this also sometimes results in injury. या तो डोर है उस पे अपना सर मार देगा या कोई सामने खड़ा है जाके उससे उस पे अपना सर मारेगा। मतलब when he is excited or what? Unhappy.
unhappy. So is कुछ गुस्सा आ गया, कुछ and is not happy with that. So suddenly, right? कोई भी कुछ भी हो सीधा जाएगा, लेकिन मम्मी नहाने गई है, दरवाजा डाल दिए, so bangs his head because she is in other room and she left him, and he's unhappy and he starts banging his head to the wall or to the door. Okay. So I think it may be attention seeking. I think so. Otherwise, I don't think it is self-stimulatory. I think it is attention seeking because you react with after that ना, जैसे उसकी मम्मी react करती है जब ये head banging करता है तो वो react करती है ना, मम्मी आप react करती हो ज़्यादा Yes. है ना. So we try to stop him, but वो रुकता नहीं है, तो वो क्या ऐसी सिर मारते रहता है. तो मैं भी कुछ देख काम कर रहा हूँ, बंद कर दिया है, और he was watching TV or something, you stopped it. और this is behavior issues. You just अगर sensory भी है, because तो पता है कि जितना input आप देंगे, मान ली हेड बैंगिंग और वो जो, हालांकि हेड बैंगिंग वगैरह क्या होता है कि अगर उसको यहाँ पे क्या होता है कि सिचुएशन में कर रहा है, जो एग्रेसिवनेस से करवा रहा है, तो बेटर है कि आप कैसे उसको उस एग्रेसिवनेस को या जो भी वो गुस्सा कर रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको कैसे एक अल्टरनेटिव अप्रोच के थ्रू हम उस गुस्से को कम कर सकते हैं. ये देखिए प्रैक्टिकली आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई टू लाइक उसका जो इन्वायरमेंट है उसको कामिंग रखने की कोशिश करना है कि एवरी टाइम उसको गुस्सा नहीं दिलवाना है, एवरी टाइम उसको उस तरह का एक्सपोजर नहीं देना है जिससे उसको गुस्सा आ जाए. एक तो वो आप कोशिश करिए, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा उसको इनपुट दें. आई थिंक उससे Thank you. Sir, may I? Yeah, with you. So my son is borderline autistic or diagnosed, and Okay. he is also ADHD. We are going on with the medications. So my 2-3 issues are that he started again playing with the fingers, which he had left since 2-3 years. Like he has started doing like this again. If you can see me, he'll just fold and look like this. This he has left already, but again he has started in this lockdown since last month. And sir, he is very much interested in eating. Whenever he is mentally free or I don't make him do any of the activity, he'll keep on searching the dabbas. He can climb, he can use any of the mind style to take out the dabbas. Okay. And the third issue is he is very obsessive with the eraser. I can just show you out. See, this is the way he plays with the eraser. He'll make the full long threads out of it, and he keeps on moving like this with the eraser. Okay, so through thread. Okay. Okay, so I think I heard your second and third question. First question was finger. About the finger, you told me. Can you repeat? Yes. Like this he'll do. Okay. This Yes. he has left already. This forgotten 2-3 years. But now again he's with this. Okay. Yes, work on his skill. Fine motor पे आप काम करो. Just work on his skills, fine motor skills. एक तो finger के लिए fine motor definitely fine motor आप उस पे काम करेंगे तो definitely वो चला जाएगा. First and second thing is दूसरा जो आप बताए कि like एक मिनट. What is your screen? Eating. So eating, अच्छा habit of eating ना, habit of eating. Okay. ठीक है. पहले आपको जज करना है कि हैबिट ऑफ ईटिंग मींस क्या, मतलब आपको उसको या तो आप टाइम पे क्या वो उसको ज्यादा भूख लग रहा है, हंग्री इज मोर हंग्री देन अदर चाइल्ड और व्हाट, मतलब कि ऐसे ही हैबिट है उसका. व्हाट यू थिंक? Can we do this? If this question requires some time, then can we address it separately? It looks like there are 3 questions right on it. So. Okay, Vidhi ji, I will give you answer separately. I will give you. Just put About eraser also, sir. I'm more concerned eraser playing, sir. Eraser playing, na, work on fingers. Work on his fingers. Definitely, it will improve. Work on his fingers. Just a fine motor, maximum fine motor skills you will do. I already told you ना कि जैसे जो इनपुट होता है ना, जहाँ पे स्मॉल जॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप ज्यादा इनपुट देंगे तो डेफिनेटली वो फिंगर से खेलना कम हो जाएगा. दूसरा बात की वे ऑफ कम्युनिकेशंस भी होता है. मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि आई थिंक ये कम्युनिकेशन जो इसका जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, तो आप कोशिश करो इसके साथ ज्यादा ज्यादा कम्युनिकेट करने का. जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ज्यादा ये सब जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स है वो कम हो जाएंगे. ठीक है? Right. And if in case you need more information, I mean, we can connect after this webinar.
Okay. Yeah. So next question is from Nana Anand. She asked the same question like head banging. उनका बेटा 6 साल का है and he also do the same hand banging. Okay. Okay. So Mhm. all right. So I hope she got Actually, answered. you can go through like head compression and neck compression. Actually, I cannot see you, मतलब I cannot show you now. But आप किसी से जो भी थेरेपिस्ट है आपका, you are having therapist in your areas, जस्ट आप उससे सीखो, आप हेड कंप्रेशन, नेक कंप्रेशन उसके थ्रू, और बहुत सारा एक्टिविटीज होता है जहाँ पे हमारा हेड पे इनपुट मिलता है, या एक पावर वेव आता है, इफ यू कैन सर्च ऑन योर गूगल पावर वेव, उसके थ्रू आप हेड पे इनपुट दे सकते हैं, उससे इसका हेड बैंगिंग डेफिनेटली कम हो जाएगा। और प्लस आप फिर वही चीज है कि दोबारा फिर वही बोलूंगा कि आप देखो किस सिचुएशन में वो हेड बैंगिंग कर रहा है, तो ट्राई टू लाइक अवॉइड दैट सिचुएशन। आप जो जिस सिचुएशन में वो कर रहा है उसको कोशिश करें कि उस एनवायरनमेंट को थोड़ा प्रॉपर करने का और इस सिचुएशन को कम से कम करने का, तो उससे डेफिनेटली हेड बैंगिंग कम हो जाएगा। Okay. Yeah. So all right. Next is I'm also going through because most of the parents are asking the same question like Swastik Chamuchi. उसको आप छोड़ दें, just left that question and आप आगे Yeah, बढ़ें जो आपको लगता है different questions। Yeah. So you can pick the question from the chat box like this one. Actually, here actually, I can see Yeah, right. Preet Sidhu, my son keeps on watching fan and on same questions. Sometimes kids are so indulgent in computer and phone. There's a parent who asked this question, Bhuvneshwari. My son does lot of humming and singing. Okay. He started as soon as he wake up. He doesn't do it when he listens to songs and when he does an activity. Yeah. I think work on oral motor activities, it will by which it can decrease. Like अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा oral motor कराएंगे तो humming sound definitely चला जाएगा, जो इसका जो, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से input मिलता है, जब आप humming sound निकाल रहे हो या different जो sound निकलता है, तो अगर आप oral motor कराते हैं like oral motor like blowing, sucking and that type of activities can reduce that type of behaviors. तो जितना ओरल मोटर आप एक्टिविटीज कराएंगे उससे इसका ह्यूमिंग और इस तरह का जो साउंड निकाल रहे हैं डेफिनेटली कम हो जाएगा। Okay. One question is from Purushottam Pulam. My daughter oscillates on the bed itself every morning when get up from sleep. Well, I didn't get this question, so now I'm moving to next Mamta Dhami. Her question is like her son is 19 years old, and he makes a lot of loud sounds with his throat while walking. How can I regulate it? So, 19 year 19 yeah, 19 years के हैं उनका बेटा। Okay. और He's making sound. या ममता आप हो यहाँ पे? Mamta, can you hear me? Mamta Dhami, yes, Yeah. I think so. She's here. I mean, if you're Yes, speaking, Mamta, yes, please. आपकी आवाज नहीं आ रही। I can't hear you. anyway, so आप क्वेश्चन समझे सर इनका? मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब साउंड निकालता ही है ना कि जोर से साउंड निकालता है ना? या तो उसके मतलब साउंड निकालते जब ये काम कर रहा है। The question is like how to regulate it. ममता आपका क्वेश्चन उसको भी क्लियर नहीं हो पा रहा और आपको वॉइस भी नहीं आ रही है, तो आप चैट बॉक्स में डाल दो जो भी है। कोई नहीं, मैं समझ गया, कोई नहीं, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। वो लाउड साउंड निकालता है तो उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं ना? ममता जी यही पूछ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही ममता जी, सो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ना कि वो साउंड निकाल रहा है उसको कैसे हम रेगुलेट करें, जो साउंड निकालता है वो लाउड साउंड निकालता है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं ना? राइट, तो ठीक है, कोई नहीं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए देखिए इसमें वही चीज है, मैं बताया ना कि मैक्सिमम ओरल मोटर में भी ग्रेडिंग होता है। अब ये मत समझो कि सिंपल जैसे ब्लो करा लिया तो ये ओरल मोटर आपका हो गया, आपको उसमें भी आपको ग्रेडिंग करना पड़ेगा। जैसे ब्लो में भी होता है कि जैसे आप स्ट्रॉ से ब्लो करा रहे हो, आप पहले क्या कर रहे हो कि जैसे सिंपल आप कोई भी चीज पानी में ब्लो करा रहे हो, इसके अलावा जो कुछ ऑब्जेक्ट्स रख के, जैसे मैं को लाइट ऑब्जेक्ट्स कर सकता, बीट्स रख दिया या कुछ काजू या कुछ राजमा स्टैक्स रख के उसको ब्लो कराना है, प्लस एक डिस्टेंस हमने दे दिया कि इस तरफ से उस तरफ तक ब्लो कराना है। कहने का मतलब कि आप ओरल मोटर जो एक्टिविटीज हैं उसमें थोड़ा सा ग्रेडिंग करें, उससे थोड़ा सा इनपुट उसको मिलेगा तो एक तो उससे कम हो जाएगा डेफिनेटली। दूसरा बात,
दूसरा है कि वही मैं बताया किस सिचुएशन में उसको प्रॉब्लम, किस सिचुएशन में कर रहा है। अगर ये अटेंशन सीकिंग है, अगर ये बिहेवियर है, तो वहाँ पे आपको गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर का नॉलेज उसको देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अलग अलग रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये 19 ईयर्स है, 19 ईयर्स ओल्ड है, तो कहीं ना कहीं रिइंफोर्समेंट का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको निगेटिव भी देना है, पॉजिटिव भी देना है जहाँ पे वो गलत कर रहा है, प्लस कुछ पिक्चर और ये सब के थ्रू भी आप उसको जो है उसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि गुड क्या है, बैड का क्या है, जहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बिहेवियर मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा फिजिकल स्किल्स भी आप कराएं, फिजिकल एक्टिविटीज जितना आप करा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मीन्स कि कुछ अगर आउटडोर एक्टिविटीज है जो वो कर सकता है, कुछ इस तरह का उसको इनपुट मिल जाए जहाँ पे साइकिलिंग वगैरह होता है या कुछ इस तरह होता है, तो इससे भी डेफिनेटली उसका थोड़ा सा वो काम डाउन होगा, तो वो एग्रेसिवनेस और वो जो साउंड निकालता है, वो जो साउंड वाला जो हैबिट है वो कम हो जाएगा। तो इट मे बी बिहेवियर और मे बी सम सेंसरी इश्यूज, सो दोनों इसमें हो सकता है, बट सेंसरी कम है, बिहेवियर ज्यादा, बिकॉज इज नॉट 19 ईयर्स ओल्ड। तो बेटर है कि आप उसको बिहेवियर पे ज्यादा काम करें और इसके अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप ज्यादा करें, क्योंकि उसका एनर्जी वहां से रिलीज होगा। जब एनर्जी उसका रिलीज होगा तो हमको लगता है कि थोड़ा सा वो काम डाउन होगा। तो कुछ इस तरह साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, इस तरह का एक्टिविटीज आप ज्यादा से ज्यादा कराएं, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है। Okay, I request Rakesh Kumar not to share your screen. Hello sir, this is Purushottam. Sometime back you called me regarding my question. So my daughter is 12 years old, and whenever she gets up from bed, right, she tries to oscillate like this and try to bang her nose on the bed itself. So what should I do, sir, to stop that? I think she's having some वही चीज है, she's having communication problem, communication issues. So you have to work on communications properly. Just see it, just observe her in which situation she is doing this type of behavior, and you communicate more, because social communication is very important for every child. So better you communicate more, definitely that behavior will decrease. Otherwise maybe she is having some sensory issues, so you have to first assess it, because जो आपका वहाँ पे in your areas अगर कोई थेरेपिस्ट है, अगर सेंसरी प्रोफाइल के थ्रू, या आजकल ऑनलाइन होता है, तो लाइक उसके थ्रू आप एक सेंसरी जो प्रोफाइल है वो आप करवा के आप देख सकते हैं कि योर चाइल्ड इज हैविंग सम सेंसरी इश्यूज और नॉट। सो पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द काउजेस, क्या कारण से ये हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करके तब उस पर आप काम करें। दिस इज नॉट लाइक, जैसे मैं कुछ एक कॉमन एग्जांपल बता दिया, तो दिस इज नॉट लाइक हर बच्चे का अलग अलग चीज होता है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। So you have to work on all these areas. You have to sort out in which areas she's having problems. So either she's having sensory issues, either she's having communication issues, either she's having other issues. So you have to work on all that areas through your professionals or through like अभी जो भी professionals अभी ले रहे हैं उसके through आप कर सकते हैं. Okay. All right. Thank you, sir. Next is from Soumya Kamal Kishore, and she's saying उनका बेटा 5 साल का है और वो he does lot of mouthing even on non food items. तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए मुंह में डालने के लिए, चबाने के लिए. तो आई थिंक अगर ये लॉन्ग टाइम से चल रहा है, अगर बहुत दिन से ये हो रहा है, तो आई थिंक इसको एक तो मेडिकली थोड़ा इंटरवेन करना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा सा टेस्ट कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा केमिकल इश्यूज भी हो सकता है, कुछ आयरन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी माउथिंग बढ़ता है। एक तो मेडिकल चीज को सोच देखना पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड अदर थिंग्स इज, अगर माउथिंग ज्यादा है तो वही चीज है कि उसको अदर वे में उसको स्टिमुलेट कराएं। डेफिनेटली गिव द ओरल मोटर, ओरल सेंसरीज, लाइक हम लोग जो मसाज करते हैं, इंटरनल मसाज लाइक गम मसाज और आउटर मसाज, आप बाहर से भी मसाज कर सकते हैं। आप जो वाइब्रेटर होता है, जो मसाजर होता है, उसके थ्रू भी आप मसाज कर सकते हैं। एक जी वाइब आता है, जेड वाइब, जो जी वाइब होता है, उसके थ्रू उसका डेफिनेटली आप उसको इनपुट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब गिव मैक्सिमम इनपुट, जहाँ से आप उसको उसका जो बिहेवियर, जो माउथिंग है वो आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोटर इनपुट है वो भी आप दे सकते हैं, ओरल मोटर स्किल्स उसका इंप्रूव कराएं, तो उससे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मोटर स्किल्स इंप्रूव कर जाता है तो सेंसरी अपने आप चला जाता है। तो आप डेफिनेटली ओरल मोटर और ओरल सेंसरी दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा, बट इसके पहले थोड़ा सा मेडिकल आप सॉर्ट आउट कर लें कि कहीं उस तरह का कोई इशूज तो नहीं है कहीं ना कहीं, तो दोनों रीजन हो सकता है। तो जस्ट ट्राई, ओके। Okay, so there is a question. I'm not sure how relevant it is to our topic. There is Deepika Singh, and उनका बेटा बच्चा है 21 year old का, high functioning child with extremely high imagination. Sometimes this imagination seems real to her,
of the actual world, and she want to make it real. She uses this escape it in her own world. I'm sorry, I'm not getting this question. Deepika Singh, So I think this is basically, my daughter is 11. I was a psychopath 21. And Deepika. any I day she's think bored. your voice is breaking, Deepika. yeah, hi, your voice is breaking. Are you able to listen now? Hello? Hello? Yeah. Hello. So anytime my daughter, she goes in imagination. And No, I can't hear. imagination sometimes is related. Hey, Deepika, sorry, your voice is not I that. cannot hear you, Deepika. I We cannot. are not getting you. I can't. There is no. Okay, anyway. So once you're back, then we will take your question. Okay. अच्छा एक करेक्टर है उनका बेटा जो भी बच्चा है वो 11 ईयर ओल्ड है नॉट 21 ठीक है आपकी आवाज भी वॉइस ब्रेक हो रही है वर्किंग So is it clear now? no not yeah, sorry okay meanwhile there is a question from Snehalata and she's saying her daughter throw all the things from the balcony outside all the times always throw the ball upward towards the fan plays with electric switch on off how to tackle these ये अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था उसी से रेलेवेंट ही है कि स्विच ऑन ऑफ करना हाँ नहीं एक्चुअली इसमें क्या है कि वही चीज है देखिए होता क्या है इसमें क्या होता है कि बच्चे में इसको पता नहीं है ना उसको खेलना है जैसे आप जनरली क्या होता है कि प्ले स्किल्स जो प्ले स्किल होता है उसको इंटरवेन करने की जरूरत होती है बच्चे में प्ले स्किल्स का कहीं ना कहीं लैक होता है कि हमको कैसे खेलना है किस चीज से कैसे खेलना है तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का जो बिहेवियर है वो तभी डेवलप होता है जब उसमें प्रॉपर प्ले स्किल्स नहीं डेवलप की तो बेटर यू लाइक वर्क ऑन प्ले स्किल्स ज्यादा से ज्यादा इसके साथ खेलें इसका जो प्ले स्किल्स है उसको इंप्रूव कराएं चाहे वो ग्रॉस मोटर का हो या फाइन मोटर रिलेटेड हो प्ले उसको सोशल प्ले या अदर प्ले आप कराएंगे तो डेफिनेटली ये वाला चीज जो बिहेवियर है चाहे वो स्विच ऑफ ऑन की है का है या कहीं पे वो थ्रो कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज से उसको एंजॉय कर रहा है वो इंटरेस्ट कर रहा है जब आप प्ले में काम करते हैं प्ले डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो डेफिनेटली वो कम हो जाएगा तो मेरे ख्याल से हेलो हेलो गुड इवनिंग सर प्लेवे मेथड से ही मैं सारा काम करती हूँ बट जब हम लोग बॉल कैचिंग थ्रो वाला वर्क करते हैं तो कितनी बार भी मैं समझाऊं फिर भी वो बॉल हमेशा अपर डायरेक्शन में फैन में ही मारेगी मतलब वो अटेंशन सीकिंग होता है या कुछ सेंसरी है या बिहेवियर आई कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग attention seeking totally attention seeking है अगर बार-बार उस चीज पे करते दिस इज नॉट सेंसरी दिस इज attention seeking तो आप उसको कुछ मत करो ना फैन उसमें फैन आप एक तो चले नहीं फैन ठीक है अगर वो फैन में कर रही है तो बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा आउटडोर आप कोशिश करें जहाँ पे फैन नहीं हो वहाँ पे इस तरह का एक्टिविटीज वहाँ पे इस तरह का प्ले कराने का जब वहाँ पे आप कराने लगे तो ग्रेजुअली आप फिर यहाँ पे लाएं और यहाँ पे कुछ इस तरह का एक्टिविटीज कराएं जहाँ हाइट पे या ऊपर नहीं मारना हो जैसे आप अंडर हैंड आपको थ्रो करना है बॉल जैसे आप कैच थ्रो ओवर हेड आप करा रहे हो जैसे अंडर हैंड करना है या नीचे कहीं करना है तो जैसा जो आप करा रहे हैं उसको थोड़ा सा उसका मेथड थोड़ा चेंज कर दीजिए उस जो जगह है वो जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए दिस इज बिहेवियर दिस इज अटेंशन बिहेवियर एक्चुअली ओके एंड जो चीजें वो बाहर फेंकती है बालकनी से उसमें कोई सेंसरी नहीं है नहीं वही सेम चीज है अगर सेंसरी है भी बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग अगर सेंसरी है मान लिया कि वो बाहर फेंक रही है तो कहीं ना कहीं वो इनपुट चाहिए जैसे शोल्डर आप अगर फेंक रहे हो तो वो ज्वाइंट इनपुट चाहिए होता है तो फेंकने का तो वो कहीं पे भी फेंक सकती है अगर सेंसरी है तो वो घर में भी इधर उधर फेंक सकती है वो बाहर ही क्यों फेंकती है तो कहीं ना कहीं वो बिहेवियर है अगर सेंसरी है भी तो आप बॉल कैच थ्रो करा रहे हैं आप कहीं ना कहीं ये इनपुट दे ही रहे होंगे आप जो ज्वाइंट हाँ एनिमल वॉक्स और वो सारी चीजें तो मैं करवा रही हूँ आई थिंक आप कर रहे हो तो अगर वो सेंसरी होगा तो वो चला जाएगा अपने आप बट ये बिहेवियर हमको लग रहा है तो वहाँ पे आप रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं और आप उसको थोड़ा सा गुड और बैड वाला चीज आप बता सकते हैं वहाँ पे यस नो कुछ सोशल स्टोरी आप सुना सकते हैं सोशल स्टोरीज थे ओके हाँ डेफिनेटली उससे कम ओके थैंक यू सर थैंक यू I'm not seeing much questions over here so now hello sir can I ask a question are there any more questions like I have put up my question but hello everyone I'm Farida
सर मुझे मेरी बेटी अब शी इज होल्डिंग अ पेंसिल वेरी क्लोज टू हर आई। ये बहुत एक नया बिहेवियर अब शुरू हुआ है। लाइक वो लाइक विजुअल स्टिमिंग है ना सर। ये मैं तो उसे लाइक एक्सरसाइजेस डार्क रूम में करवा रही हूँ विद टॉर्च लाइट्स, विजुअल ट्रैकिंग सब कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर आई के ऊपर ही करती है। शी होल्ड्स अ पेंसिल वेरी क्लोज, एनीथिंग एनी like long objects very close to her eye is really frightening। अगर कभी हम नहीं होते तब भी कर रही होती है। she might like hurt herself। तो इसके लिए क्या किया जाए? I'm not able to understand what kind of behavior can be try like replaced। yeah, you try to do vestibular and visual simultaneously। एक साथ आप करो वेस्टिबुलर और विजुअल। वेस्टिबुलर आप समझ रहे हो ना, हाँ जहाँ हाँ पे हाँ हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है, जहाँ पे बैलेंसिंग का जो पार्ट आता है। वेस्टिबुलर जैसे आप स्विंग करा रहे हो, जैसे स्विंगिंग एक्टिविटीज हम करा रहे हैं ना, तो स्विंगिंग एक्टिविटीज में हम कुछ लाइटिंग का चीज जैसे फोकस करना है, जब वो स्विंग कर रही हो उसमें आप फोकस कराओ, वॉल पे फोकस कराओ। जैसे टॉर्च या लेजर लाइट होता है, जब वो स्विंग कर रहा हो तो वहाँ पे उसको लाइट आप दिखाओ, या कुछ इस तरह का चीज। जैसे अगर वो स्विंग कर रहा हो तो आप वहाँ पे कुछ पिक्चर बना हुआ है तो पॉइंट दैट पिक्चर, लाइक देख बताओ क्या है। करने का मतलब जब आप वेस्टिबुलर विद विजुअल आप कराएंगे तो डेफिनेटली इट विल गो। मेरे ख्याल से वो विजुअल ही ले रही है, जो इनपुट ले रही है, जो इस तरह का फिंगर वो कर रही है या पेंसिल कर रही है, तो वो इनपुट ले रही है। तो कहीं ना कहीं आप वेस्टिबुलर विजुअल दोनों आप ट्राई करें, बिकॉज आई थिंक यू आर okay नॉट गिविंग वेस्टिबुलर स्टिमुलेशंस ऑलरेडी यू आर गिविंग और नॉट। yes like जिम बॉल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हम जिम like बॉल, यस जिम बॉल में भी हाँ आप हाँ करा सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू इट इन जिम बॉल आल्सो। लाइक जैसे टू एंड फ्रो मोशन जब आप रॉकिंग कराते हो आप सिटिंग में, तो एट दैट टाइम आप कुछ कुछ पिक्चर्स आप दिखाओ, बोलो पॉइंट करने के लिए दूर में कोई पिक्चर है, कुछ है लेटर है, अगर उसको कॉन्सेप्ट है लेटर का या कुछ इस तरह वर्ड्स का, तो यू कैन वर्क ऑन okay दिस। sir मींस okay कि I वेस्टिबुलर like okay so I have been working separately। मैंने combine नहीं किया था पहले कंबाइन तो करो आप, सेंसरी इंटीग्रेशन पे आप काम करें, इट विल बी इफेक्टिव, इट विल बी इफेक्टिव। okay ओके okay sir thank you very much। Yeah. Hi, sir. I actually got disconnected, I think, during my question turn. So this was like my son actually does a rhythmic sound like all the time. But Okay. when he is doing something of his own, which interests him, then he stops. So we don't stop him doing that rhythmic sound as long as he's doing the things. You can hear him right away as well. Okay. So as soon as he finds something interesting, he stops automatically. But we don't stop him or we don't हम उसको रोकते नहीं है कि आप मत करो ये, हम लोग ठीक कुछ है। काम दे देते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये चीज़ जैसे अभी इज 6 years old, तो ये 3 साल तक नहीं था, ये 3 साल के बाद से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 5 साल के बाद से मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम लोगों ने इसका स्पीच थेरेपिस्ट में अभी भी कर रहे हैं, अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इश्यूज है, बट वो कम नहीं हो रहा था। उस स्पीच थेरेपी और इसका जी वाइब वगैरह से ओरल भी हम लोगों ने काफ़ी कराया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। कभी आपने इसको एक्टिव ओरल मोटर पे काम किए हो? जैसा आई एम आस्किंग यू, ओरल मोटर पे काम किया इसका? सर ओरल मोटर क्या हुआ सर, थोड़ा नहीं सा पता। ओके, देखिए अभी तक जो आप करा रहे हैं ना, दिस इज पैसिव, जो आप जी वाइब से करा रहे हैं, या इवन आई थिंक मसाज आप करा रहे हो, स्पीच थेरेपिस्ट भी मेरे ख्याल से वो कुछ मसाज वगैरह करते होंगे, जो भी है। तो अभी हम पैसिव करा रहे हैं, एक्टिव आप कराओ। एक्टिव मींस कि जहाँ पे उसको वो खुद इनपुट ले रहा हो, बिकॉज वी आर गिविंग इनपुट नाउ। अब उसको खुद इनपुट लेने दीजिए। खुद इनपुट मींस कि उसको वही है, मैं बताया आपको, ब्लोइंग हो गया या सकिंग हो गया या जॉ मूवमेंट्स हो गया या टंग मूवमेंट्स हो गया, इस टाइप का कुछ एक्सरसाइजेस आप हाँ कराएं। वो सर कराते हैं हम लोग उसको। अच्छा मुझे टर्म कराते नहीं हैं पता था, बट ये हम एक्सरसाइजेस कराते हैं उसको। हाँ, तो वो जैसे इनपुट बबल ब्लो कराते हैं उसको, बलून ब्लो कराते हैं, खुद हाँ भी बिल्कुल करता है, बिल्कुल, that's good. हमसे भी शेयर करता है कि बलून ब्लो कर दो। ओके ओके, नहीं दैट्स गुड थिंग, दैट्स गुड थिंग। अगर वो कर रहा है उसका एक फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। अदरवाइज वो साउंड सुन रहा है या जो भी है वो रिदमिक साउंड निकाल रहा है, जो भी वो कोशिश कर रहा है निकालने का, तो अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिकॉज उससे क्या आपको कुछ हिंडर हो रही है? अगर वो स्पीच में कुछ नहीं करा रहा सर, हिंडर नहीं होता है वो, बस जैसे सोशली ऑकवर्डनेस रहती है। उसका हम लोग उसको कन्वर्सेशन इंप्रूव हुआ है? हाँ सर, कॉन्वर्सेशन जैसे अभी वो अपनी नीड बेस्ड लैंग्वेज उसकी आ गई है। अब ये 3 साल तक नॉन वर्बल था, बट उसके बाद से वेरियस थेरेपीज ओटी सब कुछ कराने के बाद धीरे धीरे अभी उसको एटलीस्ट अपना नीड बता देता है। तो अभी आई थिंक हाँ मैं समझ गया, ठीक है। आई थिंक कन्वर्सेशन पे आप ज्यादा काम करके, जब वो स्पीच वाले काम करेंगे ना, क्योंकि अभी इसका स्टार्ट हुआ है जो भी है वर्बल, तो कन्वर्सेशन पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सारा साउंड चला जाएगा एक टाइम के बाद। क्योंकि 3 इयर्स तक कहीं ना कहीं इसका जो है नॉन वर्बल था,
और जी अब जी ये वर्बल जैसे उसके बाद वर्बल हुआ है, तो हमको लगता है जब कन्वर्सेशन इंप्रूव करेगा, जब इसका लैंग्वेज थोड़ा इंप्रूव कर जाएगा तो डेफिनेटली चला जाएगा, नथिंग टू बी वरी, उसमें वरी होने की बात नहीं, थोड़ा बहुत लेता क्योंकि सर है। कॉन्वर्सेशन तो अभी आ गई है तो ये बढ़ गया है उल्टा मतलब 3 साल तक नहीं था, फिर ये जब इसने फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया तब आया, फिर थोड़ा सा अच्छा हुआ तो कम हो गया था। अभी जब इसकी अच्छी अभी अभी आई कैन से कि हम लोग का लाइफ थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज ही कैन टेल कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब ये आ गया है तो अब उसके साथ ये साउंड भी बहुत ज़्यादा आ गया और रिदमिक रहती है, ऐसा नहीं कि मतलब साउंड निकाल रहा है, ऊपर नीचे वो टोन पिच सब हाई ऊपर नीचे करता रहता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो उसको एक काम आप कर सकते हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको सिंगिंग का एक हैबिट होता है, जैसे अगर वो रिदमिक साउंड निकाल रहा है, उसका साउंड अगर अच्छा है, गिव द एक्सपोजर ऑफ द साउंड, व्हाई यू आर नॉट लाइक, जैसे म्यूजिक टीचर है या आप म्यूजिक उसको आप सिखाओ, कुछ म्यूजिक का आप एक्सपोजर दें, बिकॉज हो सकता है कि उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो। यू कैन नॉट से अभी अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो साउंड निकाल रहा है और बता रहे हैं कि रिदमिक साउंड निकाल रहा है, बेटर साउंड निकाल रहा है, अच्छा साउंड निकाल रहा है, दैट मींस कि उसका कहीं ना कहीं म्यूजिक की तरफ जो म्यूजिक वाला स्किल्स है उसको आप देख सकते हो, उसको आप चेक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर वो चेक कर लिया नहीं है। इसको अच्छा, हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई कराए थे और म्यूजिक टीचर से भी एक बार हमने कंसल्ट किया था, तो फिर मतलब नहीं बात बन पाई, हम लोगों ने काफी ट्राई नहीं किया। ऐसे सडनली ऐसे कोई टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, अब बेटर है कि आप घर में कुछ आप इस तरह ले आए साउंड, वैसे मैं बताया ना पियानो या कुछ इस तरह का चीज आप घर में लाके आप रख दीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है वहां से वो नहीं करे या कुछ इस तरह करे, बाद में हो सकता है उसके साथ खेले, पहले तो ये बात हो गया, मतलब जो मैं बताया कि आपको म्यूजिक वाला जो है उसका एक्सपोजर दें। दूसरा है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा चीज को आप बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं कन्वर्सेशन इसका इंप्रूव कर गया, रोज आके उसको आप वही बताया, सोशल स्टोरी हो गया, कोई पिक्चर के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बात करने की कोशिश करें, उसको डिफरेंटली वो चला जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए लीजर टाइम जो स्टीमिंग है, ये लीजर टाइम स्टीमिंग है, जब वो फ्री रहता है, जब वो कुछ उसको करने का नहीं होता है तो एट दैट टाइम अगर वो कर रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग भी गुनगुनाते हैं चीज, ठीक है, वो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट अगर वो थोड़ा बहुत अगर लेता है जिसकी वजह से वो इधर इश्यूज नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी हाय उज्जवल जी, मैं गौतम बोल रहा हूँ। मेरे को एक क्वेरी है, मेरा बच्चा 3.5 साल का है सर, वो अभी तक उसमें ना उसमें उसके अंदर ऑटिज्म जो फीचर्स है उसमें ये है कि वो कटोरी लेके आता है, वो सिर्फ कटोरी किचन से उठा के लेके आएगा और जमीन पे बहुत टैप करता रहेगा, उसको ये बहुत अच्छा लगता है कटोरी, और एक दिन में ये काफी बार रिपीट भी करता है इस चीज को, और बैलून ब्लो नहीं करना जानता, और अभी जंप भी ढंग से नहीं करना जानता, और हाथ अपने, और कभी कभी क्या होता है जब भी अपनी ये फेवरेट म्यूजिक सुनता है, फेवरेट म्यूजिक में हम वीडियो तो नहीं दिखाते इसको, बट इसको ऑडियो दिखाने की सुनाने की कोशिश करते हैं, तो जब ये ऑडियो सुनता है तो ये अपने कान दबा लेता है दोनों हाथों से, लाइक ही डजंट वांट टू लिसन बट ही एंजॉयज एट द सेम टाइम। आई डोंट नो व्हाई। ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कान पे अगर हाथ रखता है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं, वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है, वो कान पे हाथ रख के फिर वो साउंड सुन रहा है। दूसरी बात की जो जंपिंग या अदर स्किल्स की बात की है, ही इज नाउ 3 years old ना, 3 साल का बच्चा है अभी आपका। 3.5 सर। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, 3.5 ठीक है, जंपिंग आएगा ना, अभी तो आप उतना सर वैसे ये जंपिंग वैसे करता है सर, जैसे बिस्तर पे खड़ा कर दो, दोनों हाथ पकड़ लो, हाँ वैसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। देखिए जंपिंग, नॉर्मल जंपिंग भी आपका 3-3.5 साल के बाद ही आता है, नथिंग टू बी वरी, अगर 4 साल में भी आता है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। दूसरा बात बैलून ब्लोइंग, अभी 3 साल 3.5 साल का बच्चा बैलून ब्लोइंग क्यों करा रहा है, उतना ज्यादा टेंशन लेने के अलावा विसिल भी बजवाते हैं, विसिल नहीं बजाता सर ये, विसिल ठीक है, नॉन वर्बल है, कोई बात नहीं, विसिल अगर नहीं बजा रहे आप रखे रहो, रोज आप ट्राई करें, देखिए 1-2 दिन ट्राई करके छोड़ना नहीं है, आप रोज ट्राई करो, आज बजा के दिखाओ, आप धीरे धीरे करके, अब जैसे बबल वगैरह होता है वो फूकने, उसमें क्या होता है कि वो कुछ निकलता है, तो जब वो चीज निकलेगा उसको अगर विजुअली अच्छा लगेगा तो वो उसमें कोशिश करेगा, तो चीज को ऐसे कराई जिसमें थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आए। विशिल वगैरह में क्या होता है, उसको लगता है कुछ टास्क दिया जा रहा है, बट ट्राई इट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ विशिल भी बजवाओ। अब जैसे ब्लो करने का और भी एक होता है, जैसे स्ट्रॉ लेके आप पानी में रखो और उसको फूकने बोलो तो वो बबल बनेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो यू ट्राई इट। तो कुछ अल्टरनेटिव आप ट्राई कर सकते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, अगर विशिल नहीं बजा रहा है, बैलून नहीं फूक रहा है, टेंशन नहीं, ठीक है गौतम जी। अच्छा सर एक चीज और सर, इसके एनवायरमेंटल सर अवेयरनेस नहीं आती, ये ना बाहर जाने में, एनवायरमेंटल बाहर बच्चों के संग खेलने में भी ज्यादा एंजॉय नहीं करता उस चीज को। एक्सपोजर दीजिए सर, एक्सपोजर दीजिए उसको, जितना एक्सपोजर आप दे सकते हैं मैक्सिमम एक्सपोजर दें, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं उसको उस पर काम करें, डेफिनेटली सब आ जाएगा। बट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर आपको देना पड़ेगा, एक्सपोजर से ही कम होता है, जब पीपल एक्सपोजर हो, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो,
ऑब्जेक्ट का एक्सपोजर हो, ओवरऑल एक्सपोजर से आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम होती है ना। तो एक्सपोजर आप डेफिनेटली दीजिए, बट हाँ एक प्रॉपर वे में दीजिए। आप उसको जबरदस्ती भी नहीं करना है, पुश नहीं करना है किसी भी चीज में, और ग्रेजुअली उस चीज को आप इम्प्रूव कराइए, ठीक है। सर Hello, आपसे sir. Hello, sir. सर I am Rajiv. I सर have. अभी हाँ राजीव, सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, एक और। कौन बोल रही है? हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि मेरे बच्चे में ये इशू है कि जैसे उसको एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जैसे छोटे बच्चों को नॉर्मली ये अवेयरनेस होती है कि अपनी बोतल कौन सी है, अपना बैग कौन सा है, और इन सब जो सराउंडिंग्स की जो अवेयरनेस होती है अपने अपने आसपास की चीजों की, तो वो उसके अंदर नहीं है। तो हालांकि मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि ये बोतल है, ये बैग है, या फिर थेरेपी सेंटर जाते हैं तो उसको बोतल बैग भी देती हूँ मैं, बट स्टिल जैसे बच्चों को अपनी चीजों का बड़ा ध्यान रहता है, सिर्फ अपनी चीजों का, तो वो चीज उसमें नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क दैट कि ऐसा क्या, ऐसी कोई थेरेपी होती है जिसमें हम इसको अवेयरनेस इसकी अच्छी कर सके, एनवायरमेंटल अवेयरनेस अच्छी कर सके बच्चे की? नहीं, इसके अलग से कुछ थेरेपी नहीं होती है इसमें। वही मैं बताया ना कि आपको कॉन्सेप्ट, इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चे एनवायरनमेंट से अपने आप लेते हैं चीज को, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपने आप नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सेल्फ इंगेज है अपने आप को, क्योंकि उसको पता नहीं कि मुझे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप चीज को सिखाना पड़ेगा। आपको बार बार बोलना पड़ेगा कि आप अपना बैग उठा लो, चलो अब चलते हैं। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके वो चीज को कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, बट अदर थिंग्स भी चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, अगर क्या इश्यूज है, वो बैग को पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। सो वो प्रॉपर वे में उसको करना पड़ेगा, बट जनरली गिव द एक्सपोजर और आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपको देना, ठीक है। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन ये है सर, मेरा बच्चा सॉफ्ट टॉयज से बहुत डरता है। सॉफ्ट टॉयज होते हैं जैसे कि डॉग होगा, जैसे टेडी बियर है, नॉर्मली जैसे कार होगी उससे नहीं डरता है, उससे बड़ा प्ले करेगा, कार्ड्स से अपने बहुत प्ले करता है, मैचिंग कार्ड्स करता है, वो सब करते हैं। लेकिन जब सॉफ्ट टॉयज आता है तो इससे उतनी तेज शाउट करता है कि जैसे उसे करंट लग गया हो, मतलब जैसे क्या है, मतलब क्या देख लिया उसने, बहुत शाउट करता है और रोता है कि इसको हटा दो। हाँ मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा सडनली कुछ मत दीजिए, जहाँ से वो अगर जो अवॉइड कर रहा है, जहाँ से उसको डर लग रहा है, उसको सडन एक्सपोजर उस पर नहीं देना है। जस्ट ट्राई कि उसको धीरे धीरे कैसे हम एक्सपोजर दे सकते हैं। देखिए वो तो आपको घर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। आप जैसे पहले हम छोटा कोई सॉफ्ट टॉयज लाके और उसको घर में रखें, ठीक है ना, और उसको खेलने के लिए नहीं दें, उसको बोलो कि जाके मम्मा को दे दो या इसको दे दो, उसको उठा के थोड़ा सा उठा के ले जाना है, उसको दे देना है। जनरली होता क्या है ना कि जैसे जिस चीज से वो डर रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि जबरदस्ती उसको देते हैं कि नहीं नहीं इससे खेलना है तुमको, ये सीखना है तुमको, तो उससे और ज्यादा डर बढ़ जाता है। तो पहले उसको थोड़ा सा यूज टू होने देना है दूसरे वे में। तो उसको धीरे धीरे करके, जैसे सॉफ्ट टॉयज का, जैसे आपको छोटा सॉफ्ट टॉयज लाके उसका थोड़ा सा हैबिट में डालिए, फिर धीरे धीरे करके उसको एक्सपोजर दीजिए, उससे कम हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा कोई इश्यूज नहीं है आपकी सॉफ्ट टॉयज से प्रॉब्लम हो रही है। Alright, sir. So One question. Actually, sir, I we have one question. 6:30. Okay, yeah, go ahead. Rajiv ji, yes, please. Sir, my son take blanket, bed sheet, cloth in mouth frequently, and second, also rotate tongue in mouth. So can't speech is very less. Okay, so this is mouthing, same thing, mouthing. Give the oral motor and oral sensory. This definitely it will decrease. Chewing tube आता है सर राजीव सर, एक chewing दे सकते हैं, उसके थ्रू उसको इनपुट मिल जाएगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल। अदरवाइज आप जो भी कंसर्न थेरेपिस्ट है या ओरल मोटर पे आप काम करिए, मेरे ख्याल से उससे फर्क पड़ जाएगा। ओरल मोटर एंड ओरल सेंसरी बोथ थिंग्स, क्योंकि माउथिंग का जो चीज होता है कहीं ना कहीं ओरल सेंसरी, जहाँ पे बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं या जो जिस बच्चे को सीकिंग होता है वहाँ पे उसका इनपुट बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए आप इस पे करने का, डेफिनेटली आपको कम हो जाएगा। Okay, thank you, sir. So anyone has any question or should we close? Sir, hello sir. Yes. Anji. Sir, I am Anita from Mumbai. I am a special educator. I have one request here. This session is so nicely, so simply. Dr. Dubey has explained everything. This will be very good and very simply. Parents can apply the activities for children. One request is here that kindly provide the link so that I could share with other parents, so they could watch this program again and again and use daily with the kids. Ma'am,
for that I can say one thing. Let me share my our Facebook page. So Okay, sir, can you give here link? The link? Can I get link here in the chat box? Yeah, you will get link over there. After this, we will publish all these recording over there. So you will get it from the Facebook page. So if you are on Facebook. Sir, Facebook. Yeah, I am there, but can you provide me your Facebook link here? Yeah, it's here. Facebook page link here. Yeah, I just provided here in chat box. Oh, thank you very much, sir. Thank you very much. All right. So any other parent have any question? No. Sir, I just want to know what is high function autism in layman language. Good question. Very good question. What is high functioning? Okay. Acha, high functioning autism. Layman language, sir. Yeah, I understand. Layman language में high functioning. High functioning means आप इतना जान लो he is having less problem compared to other child. He is having less mild problems. This is high functioning means कि जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें functional skills हैं. This is high functioning means कि high functioning की वो चीज को समझ रहा है, एकेडमिकली उसमें कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं या थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं जिससे उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. कहने वाला कंपेयर टू मॉडरेट एंड सिवियर ऑटिज्म माइल्ड में कर सकते हो कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वही होता है इसमें ओवरऑल जो फंक्शन होता है वो अच्छा होता है, फंक्शनल स्किल्स जो रहता है वो डेवलप होता है. दिस इज हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म. सर मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो रही होती है लेकिन थोड़ा बिहेवियर भी रहता है. इसका क्या होता है, कोई स्केल नहीं होता है. मतलब ये जो हाई फंक्शनिंग, लो फंक्शनिंग, ये सब टर्म है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जनरली प्रोफेशनल यूज करते हैं इसको कि ये हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, ये लो फंक्शनिंग ऑटिज्म है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. ऑटिज्म है, फीचर्स हैं, ऑटिज्म है, हम लोग फीचर्स पे काम करते हैं. बट हाई फंक्शनिंग जनरली हम लोग उसी को यूज करते हैं जहाँ पे फंक्शनल स्किल्स ज्यादा है कंपेयर टू अदर पॉपुलेशंस. ओके. एक पेरेंट की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जैसे सर मेरा बेटा भी हाई फंक्शनिंग था, जैसा कि सर बता रहे थे. पहले मेरा भी एक क्वेश्चन था कि अच्छा लगता है हाई फंक्शनिंग, या इसको मैं नेगेटिव वे में समझूं या पॉजिटिव वे में समझूं. बाद में ये कंफ्यूजन होता है. हाई फंक्शनिंग और जो हाई जो टर्म होता है ना उससे लगता है कि ज्यादा इश्यूज हैं, ज्यादा इश्यूज हैं. राइट. तो इसमें बेस्ट चीज ये होती है कि आपके बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है, चाहे ओटी के अंदर कोई भी एक्सरसाइज कराई जाती है, चाहे सेंसरी को लेकर, चाहे किसी चीज को लेकर के जंप करना सिखाया जाता है. हमारे जो हाई फंक्शनिंग बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं. हाँ एग्रीड सर. मेरा बेटा भी सब वही है कि सीखता, समझ बहुत अच्छी हो रही है, उसकी डेवलप हो रही है, बस बिहेवियर कभी कभी की बहुत जिद्दी नहीं करना है. वो तो नॉर्मल है. हाँ सर, मतलब वही है. और रिपीटेशन, यहीं जाना है, वहां खाना है, ये करना है, वो करना है, पता है नहीं जाना है, सीडी लाने जाना है, ये जाना है. सीडी का बहुत अट्रैक्शन है, काफी चीजें हेल्प करती है सर. आप लोगों के गाइडेंस भी बहुत हेल्प करते हैं. हाई फंक्शन ऑटिज्म चलेगा. थैंक यू वेरी मच सर. ऑलराइट. सो नाउ अगर किसी के पास में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैंने सारे अपने आईडीज यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं, कॉन्टैक्ट्स वगैरह. सो यू कैन ड्रॉप मैसेज, सो वी विल रिवर्ट यू ऑन दैट. एंड या सर फिर हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे बिकॉज इट्स 6:35. ऑलराइट. सो थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. सर बस मुझे वो जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करी वो मुझे दिख नहीं रही है, आप दोबारा से डाल सकते हैं मैसेजेस में क्वेश्चंस के लिए. ओके, वन सेकंड, लेट मी टाइप इट हियर अगेन. प्लीज. थैंक यू वेरी मच. Even you can share in the screen also. Yeah, I shared that. Actually, अगर आप अच्छा कहाँ मिलेगा वो, ठीक है, मैं जस्ट अभी टाइप किया है, मिला. अरे ये कहाँ गया अभी? ये वेबिनार एट लेट्स हेल्प इंडिया. या webinar @letshelpindia.in. ओके सर, थैंक यू. So that's right. सर कोई फोन नंबर भी है सर? हाँ, फोन नंबर है ना. ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ. इसमें सब किया था हमने. 9911538884. 538884. Yeah, 4. Thank you sir. Thank you very much. All right. Thank you everyone. So thank you. Tomorrow we have another webinar. If you guys want, you can join us. Thank you sir. Thank you. This is such a good initiative from you sir. Thank you sir. Thank you very much. It was a very nice webinar.
Thank you all. Bye.